السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم 30 الیکشن یوٹیوب چینل. ہم آپ کو اپنے چینل پر دل کے تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں 30 کو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے یونیورسٹی اور مسکراتے رہیں. چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی. آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے زندہ دل قوم بنا ہے تو بھارت کی شرم میں جاؤ، نیٹو وارز چائنا. تو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں. پہلی دفعہ پراپر جو ایک بڑی تھریٹ کے طور پہ نیٹو اپنی تاریخ میں چائنا کے اگینسٹ کھولنے جا رہا ہے محاذ. ٹھیک ہے، اور پراپر یورپ. $30 پر اس نے پیٹرول لیا ہے. انڈیا نے، امریکہ نے کیا کر لیا اس کا؟ کل اس نے کوئلہ لیا روس کے ساتھ. اس نے کیا کر لیا؟ زندہ قومیں جو ہیں وہ وقت آنے پر، اب سارا یورپ جو ہے وہ ایک مسائل میں الجھا ہوا ہے اور اسی مسائل کا حصہ ہمیں بنا رہے ہیں مہنگائی کا. لیکن بات جو ہے جس میں جو بہت زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. چین کے حوالے سے انہوں نے لسٹ کر دیا ہے باقاعدہ کہ جو اسٹریٹجک پرائرٹیز ہیں نیٹو کی، انہوں نے کہا کہ اس میں اب چین شامل ہے. اور کیا اس کے لیے دیگر ممالک تیار ہیں؟ اس کے لیے اسی کے لیے تو بلایا 4 ممالک کو. 4 اور ممالک بلائے ہیں نا وہاں پہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور ساؤتھ کوریا. امریکہ نے انڈیا کا کیا کر لیا جی؟ کل اس نے دنیا کی سب سے بڑی سیمنٹ کی کمپنی نے کوئلہ بھی لے لیا روس سے. پیٹرول وہ پہلے ہی سارا لے رہی ہے روس سے. فرنس آئل وہ پہلے لے رہی ہے. LNG پہلے لے رہی ہے. چین باقاعدہ اس وقت فیوریس نظر آتا ہے. وہ چائنا ہے، یعنی چائنا کا نام انہوں نے انکلوڈ کر دیا نیٹو نے پہلی مرتبہ. جے ہند دوستو، اے ویری وارم ویلکم ٹو ہندوستان اسپیشل چینل. بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ اسپین کی راجدھانی میڈرڈ میں ہوئی ناٹو سمٹ میں روس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی ویشوک استھرتا کے لیے گمبھیر خطرہ بتایا گیا ہے. یہ پہلی بار ہے جب ناٹو نے کھل کر چین کا نام لیا ہے. تائیوان کو لے کر بڑھتے ہوئے تناؤ کے بیچ ناٹو دیشوں نے پہلی بار چین کو رننیتک پراتمکتا میں شامل کیا. میڈرڈ میں آیوجت بیٹھک میں ناٹو نے کہا کہ چین کی مہتواکانکشا اور پیڑا دینے والی نیتیاں پچھمی دیشوں کے ہتوں، سرکشا مولیوں کے لیے چنوتی بن گئی ہیں. ناٹو نے اگلے دشک کے لیے اپنا بلو پرنٹ جاری کیا اور اس میں چین کو لے کر پورے وشو کو چیتاونی دی گئی ہے. اب یہ ڈیولپمنٹ چین اور پاکستان کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہے. پاکستان میڈیا یہ چرچا کر رہا ہے کہ ناٹو نے پہلی بار چین کا نام لے کر چین کو بہت بڑا جھٹکا دے دیا ہے. دوسری طرف بھارت روس سے تیل کے ساتھ ساتھ اب کوئلے کا بھی امپورٹ کرنے جا رہا ہے. اس پر بھی پاکستانی میڈیا کی چنتا صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے. نیٹو کی جو یہ سمٹ اسپین میں شروع ہوئی ہے اس میں ٹارگٹ نمبر 1 تو ہے رشیا نیٹو کا. لیکن پہلی دفعہ پراپر جو ایک بڑی تھریٹ کے طور پہ نیٹو اپنی تاریخ میں چائنا کے اگینسٹ کھولنے جا رہا ہے محاذ. ٹھیک ہے، اور پراپر یورپ یعنی نیٹو کو، یعنی ایشین نیٹو جو ہے اب وہ کوارڈ اور اوکسس کا رول ختم ہو رہا ہے. کیونکہ پورے کی پوری نیٹو اگر یہاں آ جاتی ہے تو پھر کوارڈ اور یہ باقی پھر مطلب اب جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے ان کی کوشش پوری یہ ہے کہ اس میں نیٹو کی سمٹ جو ختم ہو تو اعلامیہ کے اندر چائنا آ جائے. اور کیا اس کے لیے دیگر ممالک تیار ہیں؟ اس کے لیے اسی کے لیے تو بلایا 4 ممالک کو. 4 اور ممالک بلائے ہیں نا وہاں پہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان اور ساؤتھ کوریا. پریزیڈنٹ بائیڈن کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی اور وہی ہوئی ہے کہ جو طیب اردوگن ہیں، ترکی کے طیب اردوگن، انہوں نے سویڈن اور فن لینڈ کے اوپر جو آبجیکشن لگایا ہوا تھا کہ ان کو ممبر نہیں بننے دیں گے ہم نیٹو کا. اور ظاہر ہے کوئی بھی رکن ممبر اگر آبجیکشن کرتا ہے، آبجیکشن تو اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے. تو وہ پرابلم کریٹ ہوئی تھی لیکن وہ ترکی مان گیا. تو کل رات کو کھانا ہوا کوئی 2-2.5 گھنٹے فن لینڈ، سویڈن اور ٹرکی کی لیڈرشپ کا، اور اس کے بعد سمٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹرکی نے کہہ دیا کہ ہم اپنا آبجیکشن ختم کر رہے ہیں. تو سویڈن اور فن لینڈ 2 نئے ملک نیٹو کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی 1,00,000 امریکن فوج آ رہی ہے یہ بیلٹک اسٹیٹس میں، یعنی اسٹونیا،
लिथुएनिया और लेथविया और साथ उसके रोमानिया, ये बिल्कुल रशिया के बॉर्डर, यानी कशीदगी मजीद बढ़ने जा रही है। इस खित्ते में इसकी जोग्राफियाई पोजीशन इतनी अहम है कि 3 सुपर पावर के बॉर्डर लगते हैं। सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा था, देखें कल $30 पर उसने पेट्रोल लिया, इंडिया ने, अमेरिका ने क्या कर लिया उसका? कल उसने कोयला लिया रूस के साथ, उसने क्या कर लिया? जिंदा कौमें जो हैं वो वक्त आने पर, अब सारा यूरोप जो है वो एक मसाइल में उलझा हुआ है और उसी मसाइल का हिस्सा हमें बना रहे हैं महंगाई का। लेकिन इंडिया ने जो इमरान खान रास्ता निकालना चाहता था, वो अमेरिका ने इंडिया का क्या कर लिया जी? कल उसने दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट की कंपनी ने कोयला भी ले लिया रूस से, पेट्रोल वो पहले ही सारा ले रही है रूस से, फर्नेस ऑयल वो पहले ले रही है, एलएनजी पहले ले रही है। और हम तो पड़ोस में, रूस टूटा नहीं था जी, किसी ने जुलूस नहीं निकाला ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, माफ करना, एक जुलूस का रिकॉर्ड निकाल कर मुझे दिखा दें कि लोगों ने ये डिमांड की हो कि हम रूस से अलहदा होना चाहते हैं। माशी तौर पर उसको डुबो दिया गया, स्टेट्स अलहदा हो गई। अब माशी तौर पर हमारे हालात क्या है हजूर, कि 178 से 208 और 6 रुपए पे डॉलर है, और टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल है। हालांकि एप्टमा इस मुल्क में सबसे बड़ा, खुद बड़ा माफिया है, ये शुगर वाले खुद बड़ा माफिया है। इस अलायंस की, जो नेटो इत्तेहाद है, नेटो ममालिक हैं, इनकी पीस और सिक्योरिटी के लिए। लेकिन बात जो है जिसमें जो बहुत ज़्यादा तशवीश की बात है वो ये है कि चीन के बारे में क्या कहा गया है। चीन के हवाले से उन्होंने लिस्ट कर दिया है बाकायदा कि जो स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ हैं नेटो की, उन्होंने कहा कि उसमें अब चीन शामिल है, क्योंकि जो चीन की सो कॉल्ड कोर्सिव पॉलिसीज़ हैं, जो धौंस वो कहते हैं कि चीन जमा रहा है खित्ते में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर, वो अब बाकायदा एक चैलेंज बन गए हैं। इस मगरबी ब्लॉक के इंटरेस्ट, इसके जो मफाद है, इसकी जो सिक्योरिटी है और इसके जो अक़दार हैं, इसके हवाले से जो सेक्रेटरी जनरल हैं नेटो के येंस स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बता देता हूँ 2 से 3 चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत अहम है, और फिर मैं आपके सामने रखूँगा कि चीन ने और रूस ने इसके ऊपर रिएक्ट किस तरीके से किया। इसके हवाले से जो डॉक्यूमेंट जारी किया गया उसमें बहुत ही हार्श ज़बान इस्तेमाल की गई है, बहुत सख्त ज़बान रूस के हवाले से इस्तेमाल की गई है, और चीन जो है उसके मिलिट्री एम्बिशंस को, उन्होंने कहा कि जो फौजी अज़ाइम नज़र आते हैं इस वक्त चीन के, जो ताइवान के हवाले से उन्होंने कहा कि चीन अपने अज़ाइम रखता है कि ताइवान को अगर ताकत के ज़रिए भी हिस्सा बनाना पड़ा वापस चीन का तो वो बनाएंगे, इसके हवाले से। और फिर उन्होंने कहा कि वो बुली कर रहा है अपने नेबर्स को, अपनी जो हमसाए हैं, और ज़ाहिर है कि यहाँ पर नाम लिए बगैर इशारा था इंडिया की तरफ, कि इंडिया के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की मखासमत जारी है, एक स्टैंड ऑफ जारी है, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इसकी वजह से ये एक सिस्टमैटिक चैलेंज जो है वो बन चुका है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो रूस और चीन के दरमियान बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक ताउन है, ये भी हमारे लिए एक थ्रेट है। जो स्टोल्टनबर्ग है, उन्होंने कहा चाइना इज सब्सटेंशियली बिल्डिंग अप इट्स मिलिट्री फोर्सेस इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स, bullying its neighbors, threatening Taiwan, monitoring and controlling its own citizens through advanced technology and spreading Russian lies and disinformation। कि एक तो रूस के बिहाफ के ऊपर झूठ फैला रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है चीन। तो जी वीडियो ही ख़त्म मेरे लिए। तो मैं तो इस जियोपॉलिटिकल पोजीशन, जो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चल रही है उसको बड़ी ही ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रही है। मुझे बहुत ज़्यादा तशवीश हो रही है कहीं ये वाले स्टेप्स अमेरिका के और नाटो के किसी जंग का पेश खमा ना हो, ये किसी तीसरी जंग की बुनियाद ना हो, क्योंकि रशिया भी बहुत अग्रेसिव है। उसने अपना वाज़ेह पैगाम दिया है कि ये जो फिनलैंड और स्वीडन और फिनलैंड भी नाटो में क्योंकि ये सबसे पहले तो ये शामिल हुए हैं, इससे भी रशिया भी और चिढ़ेगा और ज़्यादा हमला आवर होगा यूरोप की तरफ। और मैं तो यही बात करता हूँ कि यूरोप के हालात बहुत खतरनाक होने जा रहे हैं, और मैं तो इसको मसले को हल करने की सोच रहा था, और ये तो गंभीर ही हो। हम क्या मसला हल करेंगे? हम तो यही कहेंगे भाई हम अपनी बात ही कर सकते हैं कि ये ठीक हो जाए और इंसानियत बच जाए। भाई
पहले ही बहुत महंगाई हो चुकी है छोटे ममालिक। बात ये है भाई गुलजार कि ये देखें कि अमेरिका अपना किरदार नहीं अदा कर रहा, भाई अमेरिका करेगा भी नहीं, अमेरिका को कनाडा अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, इंग्लैंड अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, जर्मनी अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं दुनिया को? ये इनको लगता है कि ये एक दो मुल्कों तक ये चीज़ ये जंग रुक जाएगी। अब चाइना को भी थ्रेट कर रहे हैं बाकायदगी के साथ में, बाकायदा अपने समिट में, जो उनकी समिट हुआ है मैड्रिड में, रियल मैड्रिड में, अपना स्पेन में, कभी भी चाइना पर बात नहीं की, लेकिन इस दफ़ा पूरी जो रुखसार भाई पूरे वर्ल्ड में और अमेरिका की है ना, नेटो की, ये दो ममालिक की नज़रों में है, एक रशिया है और एक चाइना। दोनों इस वक्त चाइना जो बहुत तरक्की कर रहा है और मैं तो ये समझता हूँ जो अमेरिका की ये बहुत बड़ी चाल है, सोची समझी चाल है। चाइना को ना डिफॉल्ट पर वजह ये है कि इनको अंगेज रखा जाए जंग में, ताकि क्योंकि इनको जो टक्कर दे सकते हैं ये सबसे दो मुल्क ये मुल्क थे। एक मैं तो कहता हूँ रशिया इतना नहीं है डिफेंस के हिसाब से, जो चाइना है ना उसकी जो माशी हालात हैं और इकॉनमी है वो अमेरिका के टक्कर दे सकता था और दे रहा है भाई इस वक्त, और उसको खत्म करने में लगा हुआ है। और इसके अलावा मैंने ये भी न्यूज़ सुनी है कि जो चाइना का बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड अपना है ना, जो उनका प्रोग्राम, उनको काउंटर करने के लिए जो G20 ममालिक है ना, इन्होंने ये कहा कि हम फंड इकट्ठा करेंगे, 200 अरब का फंड, 200 अरब डॉलर का फंड इकट्ठा करेंगे और उनको काउंटर करने के लिए हम शायद को रोड मैप तैयार कर रहे हैं या कुछ मंडियाँ लगा रही है, वल्ला लोगों को पता क्या करने जा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरह पार्टी फंड इकट्ठा किया जाता है ना, इसी तरह ये जो अपने मुल्कों से फंड इकट्ठा किया जाए, 200 अरब डॉलर का ये फंड इकट्ठा किया जाएगा और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए ये अपना अमेरिका की ये प्लान है, G20 जो ममालिक उनका ये प्लान है, किसी तरह करके भी ये चाइना और रशिया को रोका जाए और ये अमेरिका जो अपने मकासद में कामयाबी होता नजर दिखाई दे रहा है कि वो मतलब हो रहा है अपने मकासद में कामयाब। भाई जो अमीर ममालिक हैं वो अमेरिका के साथ हैं, रशिया के पास इतने कम हैं। रशिया का साथ जब इंडिया देगा ना भाई, तो इंडिया और रशिया और चाइना ये स्ट्रॉन्ग तीन मुल्क रल जाएंगे ना, तो इनकी एक पावर होगी भाई। जो रशिया इस के मसले में पड़ा हुआ है और एक अपनी न्यू, मैं एक और आपको भाई गुजार बात बताऊं, ये जो हमारा मसला कश्मीर है ना, ये भी अगर कोई सुलझवा सकता है, ये हल करवा सकता है मेरे नज़दीक में वो रशिया, और रशिया ने मेरे ख्याल में अब इसके रिलेटेड को बयान दिया था, क्योंकि जो अमेरिका है ना वो तो मैं ना वो अल्फाज नहीं बोल सकता उनके लिए, मैं अक्सर लफ्ज़ एक बोलता शातर लुमड़ी पहले चालाक होती है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चालाक है। ये अमेरिकन जो है ना ये एक्स्ट्रा चालाक है, शातर लुमड़ी के जैसा ये मुल्क है। और उनके लोग भी, ये जो गोरी चमड़ी वाले लोग ना, ये बहुत ही क्लेवर हैं और ये कभी भी नहीं चाहेंगे पाकिस्तान और इंडिया में आपस में अमन हो जाए, क्योंकि ये चाहते तो हो सकता है। रशिया वालों ने क्या बयान दिया? रशिया वालों ने कहा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया चाहे तो मैं इनका ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो इनका सदियों से चलता आ रहा, 70-75 साल हो चुके हैं जिनके दरमियान ये मसला चलता आ रहा, मैं इसके इस पर सालसी का किरदार अदा करना चाह रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने सामने भी बात की थी, जब बात की थी ना को पेशरफ्त नहीं ना हुई इस पर, इंडिया इस पर आएगा ही नहीं भाई। इंडिया वालों को तो बात वो कहते कंडेम करते हैं कि भी इंडिया जो जम्मू कश्मीर है वो मुल्क ही हमारा नहीं, वो बात लद है, उनका हो जाए हमारा हो जाए या आज़ाद हो जाए, वो तो बात एक लद है। लेकिन मुझे लगता है जो मेरा दिमाग काम करता, अगर ये मसला को हल करवा सकता ना, टेबल टॉक सीरियसली करवा सकता है, इस इशू को संजीदा लेकर ख़त्म करवाने की कोशिश कर सकता है, वो एक मुल्क रशिया। भाई मेरी तो बात सुने, ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान ही कर सकते हैं, टेबल टॉक करें तो यार असल में इनकी तो आपस में अना बहुत है, अना ख़त्म नहीं हो सकती, तो ये तो कभी भी नहीं आएंगे टेबल पर, खुद कह कर नहीं आएंगे। जब भी इनको करवाएगा कोई तीसरा मुल्क साथ करेगा, उसके बाद को किस नतीजे पर ये बात पहुंच सकती है। और मेरे नज़दीक ये रशिया करवा सकता है, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा ये कि ये आपस में सुलह करके अमन अमान से, उनका असला कहाँ बिकेगा? अगर ये पाकिस्तान और इंडिया सुलह करके बैठ जाएंगे तो कहाँ बिकेगा उनका असला? ये उनकी जो मार्केट है, ये मार्केटिंग है उनके वेपन्स की, उनके ड्रग्स की, उनके ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, ये जो उनका सारा निज़ाम चल रहा है, कहाँ से चलेगा अगर इंडिया पाकिस्तान
अमन के सारे मुल्क में अमन हो जाएगा तो ये काम बेचेंगे अपने हथियार। ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई रुखसार। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है अमेरिका हथियार का, वेपन्स का। अब जो फिनलैंड और स्वीडन ने शामिल हुए हैं नेटो में, इससे अभी शामिल नहीं हुए लेकिन इससे पहले जो टर्की था ना, उसने ऑब्लिगेशन लगाया था, उसने एतराज़ लगाया था, उसने ऑब्जेक्ट किया था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब रोड वे दिखा दिया है टर्की ने कि हम ठीक है, हम अपने जो भी हम उनको जमा करते थे या जो एतराज़ात थे जो भी थे हम वापस लेते हैं। अब फिनलैंड और स्वीडन जो है, क्योंकि ये नेटो का ये रूल है कि कोई भी अगर मुल्क नया मुल्क उसमें दाखिल होना चाहता है तो पहले वह ममालिक की रजामंदी लेते हैं। अगर पहले वह ममालिक रजामंद हो तो वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन टर्की ने रजामंदी नहीं जाहिर की थी, लेकिन अब उन्होंने कर दी कि हम ठीक है। टर्की वालों की भी इकोनॉमी भी डगमगा रही है, बहुत कमजोर है, बहुत अमेरिका को टक्कर ली है ना, और अमेरिका ही उनको सीधा हो गया भाई। तो टर्की की भी है ना इकोनॉमी, वो भी डगमगा रही है, इसलिए तो अमेरिका टर्की भी ये स्टेप ले रहा है जो अमेरिका चाहता। इसराइल से बात क्या हुई थी, इसलिए हुई थी जो अमेरिका ने बात की है ना भाई, उसकी 140% महंगाई है भाई टर्की में। हमने इस पर वीडियो की थी और सबसे ज्यादा महंगाई है भाई, सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा जिम्बाब्वे में थी, उससे दूसरे नंबर पर, और उसकी थी 324। हमें वो मुझे वो फिगर से याद है, तो सबसे ज्यादा उनमें थी। तो टर्की में बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी भाई। जो इसराइल को कबूल कर रहे हैं ना वो टर्की वाले, वो यही मसला है कि उसकी इकोनॉमी बहुत कमजोर हो चुकी यार। ये ना अमेरिका का 2022 और बहुत ही अजीबोगरीब साल रहा है कि इसमें अजीबोगरीब जियोपॉलिटिक्स चीज़ें हो रही हैं जो कि देख रहे हैं कि अब मोहम्मद बिन सलमान और टर्की जो कि एक दूसरे को नहीं मतलब कि इस तरह करीब थे, अब वो भी आपस में उनका दोनों की तरफ बर्फ पिघलने जा रही है। अब मोहम्मद बिन सलमान ने विज़िट किया टर्की के कहने पर, उर्दुमान कहने पर टर्की विज़िट किया, और ये खुश आइंद बात है, होना चाहिए, करना चाहिए। जो कन्फ्लिक्ट है उसको टेबल टॉक से बैठ आप हल करना चाहिए। पाकिस्तान इंडिया को भी करना चाहिए ना भाई रुखसार। 2023 में वो यार वो मादा कोई हैसियत नहीं रखता। अब मुल्क साहब वो खुद मुख्तार है। ये मौदा सिर्फ आपको जो लगता है ना आपका मिसकंसेप्शन है, ये तो मिसपरसेप्शन है कि वो 2023 में कंट्रोल नहीं यार ये गलत बात है। आपको पता नहीं कि मौदा लोजान ये एग्रीमेंट लोजान हुआ था 1923 में। तो इसकी सबसे मेन बात यह है कि जो टर्की से शिप गुजरते हैं ना ये ट्रेडिंग शिप, उस पर वो अपना टैक्स नहीं ले सकता 100 साल तक। वो कम लेता है लेकिन कम लेता, लेकिन अब वो अपनी मर्जी का लेगा जिससे टर्की खुशहाल होगा। अब देखना टर्की कहाँ जाएगा। नहीं जो बातें करते थे कि मक्का नहीं वो सब वो झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं। यूएनओ की अब जो शिक है, जो यूएनओ का जो कानून है, लॉ है, उनका रिलेटेड अब कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर कब्जा नहीं कर सकता। जब करता है नहीं भाई वो मक्का का कंट्रोल लेगा, मुल्क नहीं लेगा मेरे ख्याल में नहीं लेगा। नादा लोजान 2023 में ख़त्म होने जा रहा है नेक्स्ट ईयर, उसके बाद देखेगा क्या होता है। इसलिए टर्की और सऊदी अरेबिया में भी हुई है ना आपस में मुलाकात की है कि हम नेक्स्ट क्या चीज़ें डिसाइड करनी है हमने। ये खुशान बात है, बैठ कर चीज़ें डिस्कस कर ली जाए तो सबसे। मैं एक बात हर वीडियो में बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा वर्ल्ड में हो रहा है ना वो इंडिया वालों का हो रहा है भाई। इस पूरे मसले में जो रशिया और यूक्रेन का है या चाइना का और अमेरिका का मसला है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत बढ़ी है ना वो इंडिया वालों नहीं मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अब दुनिया में नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके बॉर्डर के नज़दीक अमेरिकन फोर्स या नेटो फोर्स ऐसी बातें भी चल रही हैं भाई, वो तो सामने आएगी। तो ये तो देखें कि हालात किस तरफ जाते हैं। जब स्वीडन और ये दुनिया किस अपनाएगी नेटो को, वो हमला करेगा, यूरोप पर करेगा, और ये देखते हैं कि ये हालात किस तरफ जाते हैं। ये तो अपनी सोच की बात है। मुझे लगता है कि हालात खतरनाक तरीन सूरत की तरफ चल पड़े हैं। जो आर्मी जंग भी लग सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की सूरत पैदा ना हो जाए। अब दुनिया इस चीज़ की मुतहम्मल नहीं है, अब दुनिया ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये कभी भी ना हो, इसके रिलेटेड कोई भी इशू ना उठे, क्योंकि अब दुनिया ये बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि इस दुनिया में अब इतने आटम बम्स हैं, उनमें से अगर एक भी चला दिया जाए तो वो पूरे एक बड़े आजम के लिए काफ़ी है। इतने पावर्स के आटम बम टिजॉट बम्बा जो रशियन का
फादर ऑफ ऑल बम्स कहा जाता है, वो बहुत ख़तरनाक है। उनको टेस्ट करने में भी उसकी बहुत लो लेवल पर टेस्ट किया था, तो वो बहुत बड़े पैमाने पर उसने तबाही फैलाई थी। जब टेस्ट भी किया था तो सोचें कि कंट्रोल्ड पूरा अगर वो रशिया चलाता है तो उसके क्या असरात होंगे, सोच कर भी रोंगटे खड़े होते जाते हैं। हम तो यही दुआ करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि ये इस तरफ सूरत ना जाए। ये देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।